Hi guys, you know very well CAT 2024 notification has come and registration started on 1st August 2024 and will be end on 13th September 2024 and exam will be on 24th November 2024. A lot of students who have called me and communicated about syllabus, who document needs for fill up the form of the CAT and also about more information. So I will go on the website of CAT and discuss each and every type of things, how to calculate percentile, what document needs and more. So please watch the video starting to ending for getting all of the information. So first you have to search on the Googles of the www.professoracademy.co.in. Okay, professoracademy.co.in, and after opening our website, here we have linked original websites of the CAT. So first you have to click on that. Here CAT 2024 notification. So click on that. Here some of the information needs for visiting on the original websites. CAT original websites. It is a CAT original websites for fill up the forms. So after opening our websites, original website of the CAT will be open. That is called imcat.ac.in. Here given all other information related to CAT 2024 exams. CAT 2024 registration start at 10 AM, August 1, 2024, ends on September 13th. Admit card you can download on November 5, 2024, and exam will be November 24, 2024. The first point, we're discussing CAT 2024 advertisements. So we are coming at his it is a CAT 2024 CAT eligibility criteria. What is the eligibility criteria? In the given at is here given. Will be discussed in the brief of eligibility criteria. So first we are coming on the points. Registration fee. Here is given 1250 for SC, ST and PWD category candidates and 2500 for all other category of candidates. समझ में आया? SC, ST वाले को और PWD वाले को 1250 देना होगा. अदर मतलब कोई EWS हो, OBC हो, जनरल हो, उन सबको 1250 के इन प्लेस ऑफ क्या देना होगा? 2500 रुपीज. ओके, आगे बढ़े हम लोग. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में. टोटल दिया हुआ है कैट टेस्ट सेंटर जो है 170 टेस्ट सिटीज में होगा. कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी 5 टेस्ट सिटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस. मतलब 5 आपको सिलेक्ट करेंगे. उस ऑप्शन जो दिया गया 5 सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या चॉइस है, सेकंड क्या चॉइस है, थर्ड क्या है, उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जो आपको लगेगा कि पहले हमको ये सेंटर पढ़ना चाहिए उसको फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड एंड सो ऑन. इस तरह नंबरिंग करके सिलेक्ट करेंगे. नाउ वी हैव टू कम नेक्स्ट पॉइंट्स. हियर all the information completed. Now we have to come the second points. How to calculate percentile. So we are coming on the second point, how to calculate percentile. देखो एक एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, प्लीज आप लोग था देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर्स of a candidate. The steps described below are followed to calculate the CAT 2024 overall and sectional percentile scores obtained by a candidate. Sectional percentile तो समझ रहे हैं आप लोग. क्वांट का अलग होता है सेक्शंस. एक LRDI का सेक्शन होता है, एक वर्बल एबिलिटी का होता है जिसे VA लोग बोलते हैं, एंड RC का होता है. इसीलिए सेक्शन पर्सनल 3 सेक्शंस होता है. सो इन द गिवन ऑप्शन दिया गया है while illustrating
the percentile score calculation process quantitative QA for quantitative aptitude section is chosen as an example. उसे एग्जाम्पल करके बताया है. Similar process is followed for the overall percentile score calculation and for the other two sections DLR and VARC. बता चुके हैं. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, जो प्रोसेस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एग्जांपल करके बताया है वही प्रोसेस DILR का होगा, VARC का होगा. तो देखेंगे स्टेप 1, एक एक चीज मैं समझा दूंगा. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर कैट, माने कैट में जितने लोग अपीयर हुए हैं उनके टोटल नंबर कैंडिडेट को पहले लेंगे, जिसे एन से इंट्रोड्यूस किया है. स्टेप 2, असाइन अ रैंक बेस्ड ऑन द स्केल स्कोर ऑब्टेन इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शंस. समझा रहा है, मतलब जो स्कोर्स मिला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उस सेक्शन के अनुसार उनका जो रैंक मिलेगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, उसके अनुसार आपके पास होगा. टू ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट इन द केस ऑफ 2 or more candidates obtaining identical scale scores in the quantity section, assign identical rank to all those कैंडिडेट्स. मतलब आइडेंटिकल मतलब हुआ कि अगर दो कैंडिडेट का एक ही मार्क्स अगर आएगा, मान लो कि रमन नाम का स्टूडेंट है, मोहन का है सबसे हाईएस्ट मार्क्स, मान लो कि एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं कि मान लो एज्यूम करो कि 50 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स है, तो 50 अगर दो स्टूडेंट को मिलेगा तो दोनों का एक ही रैंक होगा, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग उसका 1 होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. ये कहने का मतलब है. ठीक है, एक ही रैंक देंगे. अगर एक आइडेंटिकल आपके पास अगर होगा तो इसके अकॉर्डिंगली कहा स्किल्स स्कोर्स. आगे क्या लिखा हुआ देखिए, स्टेप 2. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं. तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल अपीयर्ड, दूसरा आपके दिमाग में आ चुका है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, रैंक होगा. रैंक मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिकल स्किल स्कोर्स होगा उसके अनुसार रैंक जो मिलेगा वो लेंगे हम लोग. एज एनालिसिएशन सपोज exactly 2 candidates obtain the highest skills score in the quantitative section. मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से. then both of those candidates are assigned a rank of 1. बता चुके हैं आप लोग को, दोनों का अगर स्कोर सेम होगा तो रैंक 1 होगा. इसी तरह सेकंड में अगर 2 या 4 ऐसा स्टूडेंट हो कि 4 स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स हो तो उसका क्या होगा, सबका सेकंड रैंक होगा, जो अभी आप नीट के एग्जाम में देखे थे. द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द सेकंड हाईएस्ट स्किल score in the quantitative section are assigned to a rank of 3 and so on. समझ में आ चुका है आप लोगों को. Calculate the percentile score of a candidate with rank in the quantitative section. देखिए n for total number of students appeared ये आपको निकाला है. r for rank, the percentile कैसे कैलकुलेट होता है. n for total number of student, मान लो 2 लाख स्टूडेंट अपेयर हुआ तो 2 lakhs माइनस r, मतलब रैंक आपको जो मिला, रैंक 20 मिला, 20 आप लिखेंगे जो भी रैंक मिला, बाई नंबर स्टूडेंट 2 लाख स्टूडेंट हुआ, 2 लाख स्टूडेंट इंटू 100. ये आपका क्या बताएगा, परसेंटाइल बताएगा. समझ में आ गया मतलब. ध्यान देंगे ये एन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, टोटल नंबर कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर कैट. समझ आ रहा है, इंक्लूडिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन. 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा. 1 इज द मॉर्निंग सेशन, सेकेंड इज आफ्टरनून सेशन एंड थर्ड इज इवनिंग सेशन. सभी स्टूडेंट जितने अपीयर्ड होंगे एग्जाम में, उसमें जितने सारे स्टूडेंट अपीयर्ड हुए एग्जाम में उनका टोटल स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा, माइनस जो आपका रैंक होगा उसको माइनस कर लेंगे, बाय टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100. इससे आपका परसेंटाइल होगा. क्लियर हो गया आपको. मैंने कहा जैसे मान लो 2 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ, 20 आपका रैंक आया, 2 लाख माइनस 20 बाय 2 लाख इंटू 100, ये परसेंटाइल आपके पास आ जाएगा. नाउ वी हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो समझ गए, ये स्टेप 4. इसी तरह आपके पास है राउंड ऑफ द कैलकुलेटेड परसेंटाइल स्कोर्स. परसेंटाइल स्कोर को पी से कोड किया गया है ऑफ ए कैंडिडेट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, जो आप जानते हैं 98.86, 98.84 ऐसे होता है ना किसी का, 92.62. यही कर रहे हैं कि 2 डेसिमल पॉइंट तक आप ले जा सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास है, ये लिख दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑल परसेंटाइल scores greater than or equal to 99.995 are rounded up to 100. समझाना मत, ये आपको पता ही होगा, 5 और 5 से ग्रेटर होता है तो यहाँ 0 हो जाता है. तो 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 9 में 1 कर 10 और 9 में 1 कर 10
9 में 100 कैन, समझ रहे हैं, इसी को 100 परसेंटाइल कहते हैं, इन्हीं को यह बताया है। ये समझ गए आप लोग परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, आई एम गिविंग द एडिशन सेकंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो कैट के साइड से मैं दिखा दिया कि आप तो समझ में आ चुका होगा कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स, इसका भी मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज जो आपको क्लियर हो जाए कैसे सिलेक्शन करती है। We have come on the original websites of IIMs, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट पे हम हैं और वहां से हम एक एक इंफॉर्मेशन आपको समझा रहे हैं। कैट 2024 रिजल्ट्स एंड शॉर्टलिस्टिंग क्या होगा ये समझिए। देखिए एक एक पॉइंट है कि कैसे कैसे आपका होता है, आप इसको देख के आप ज्यादा अच्छा होगा, ये अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैट 2024 रिजल्ट्स will be tentatively available starting from the second week of January 2025। मतलब समझ में आया, सेकेंड ऑफ जनवरी समझ गया, 13-14 जैन के लगभग अप्रॉक्स रिजल्ट निकलेगा ऑन दिस वेबसाइट्स। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शंस विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव आईएम्स। समझ में, अलग अलग आईएम्स जो होगा उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जो जो सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट का, जैसे आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद, ये अलग अलग उनका वेबसाइट्स है, उस वेबसाइट पे क्या होगा, अवेलेबल होगा। ईच आईएम विल सेंड इंटरव्यू लेटर्स टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, मतलब आईएम लखनऊ में आपकी सिलेक्शन होगी तो आईएम लखनऊ खुद भेजेगा आपको लेटर्स, आईएम अहमदाबाद में होगा आईएम अहमदाबाद खुद भेजेगा, मतलब जिस आईएम्स में होगा खुद ही आपको लेटर, शॉर्टलिस्टेड लेटर भेजेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन, द क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग वेरी अक्रॉस आईएम्स। समझ में आ रहा है, मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग आईएम्स का अलग अलग होगा। ध्यान देंगे मेरी बात को, ये नहीं समझेंगे कि आईएम लखनऊ की जो क्राइटेरिया होगी वही सेम आईएम कोलकाता की होगी, वही सेम क्राइटेरिया आईएम अहमदाबाद की, ऐसा नहीं होगा, सबकी अलग अलग अपनी क्राइटेरिया होगा। कुछ कॉलेजेस आईएम्स हैं जिसमें फीमेल्स को ज्यादा वेटेज देती है, तो उनका अपना क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट आई एम गिविंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर योर्स। नेक्स्ट समझ में आया तो दे दिया आपके पास। प्लीज विजिट द एडमिशन वेबसाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव आईएम्स फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मतलब अलग अलग आईएम्स का क्या क्या क्राइटेरिया है, आईएम लखनऊ का क्या क्राइटेरिया, आईएम अहमदाबाद का क्या क्राइटेरिया, ये जानने के लिए उनके वेबसाइट पे जाना होगा आपको जानने के लिए। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ देखिए, एडमिशन प्रोसेस। आइए ये मेन पॉइंट्स है जिसको मैं एक एक समझा रहा हूं आपके पास। Please note that I am shortlist candidates for the interview stage based on their own criteria, which may be independent of each other। ये बात कर चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं। The process may include writing retest, है ना, जिस वेट कहते हैं ग्रुप डिस्कशन जीडी, एंड पर्सन इंटरव्यू पीआई से कहते हैं, समझे ना, वैट भी कहते हैं जीडी एंड पीआई। वैट और जीडी पीआई ये तीन प्रोसेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इन द गिवन एडिशन इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस इन द कैट 2024 एग्जामिनेशन इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन द एडमिशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है, मतलब जो आपका कैट 2024 का होगा मेन होगा, वह मेन पॉइंट्स है, उसके बाद एडिशनल ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आईएम्स में एडिशनली यूज अदर फैक्टर्स सच एज द प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए ध्यान देंगे, यूज अदर फैक्टर्स, समझाना है, मतलब में मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं उल नहीं है, में। ध्यान देंगे मेरी बात को, ऐसा हो सकता है कि एडिशन अदर फैक्टर भी कुछ आईएम्स देखे, क्या क्या प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स या परफॉर्मेंस, 10th में कितना मार्क्स है, 12th में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना है, या आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज किया है, ये सब देखा जा सकता है। में लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ये तो मेन क्राइटेरिया हो गया कैट कैश कोर्स। एडिशन ये सब मेन क्राइटेरिया हो गया। एडिशन ये हो सकता है कुछ कुछ कॉलेजेस में हो, ठीक है। relevant work experience, माने दो टाइप स्टूडेंट हुए डन ग्रेजुएशंस एंड इट्स द गैप ऑफ 2 years, तो 2 साल में आपने क्या किया उसके साथ एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, तो इट्स गिविंग द एडिशनल वेटेज टू यू। कुछ आईएम सब क्या करती है, उनके लिए कुछ एडिशनल मार्क्स देती है, जिनके पास 2 years का एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़ी एडिशनल मार्क्स है, बट देयर इज नो नीड फॉर दोस टाइप स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन फाइनल ईयर्स और हु इज पास आउट इन दिस ईयर।
ठीक है, तो वो तो 5 मंथ 6 मंथ का ही गैप होगा जो रेगुलर क्लासेस किए होंगे। मान लो कि 2024 में कुछ किन्हीं लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो उनका कितना होगा, और जनरल रिजल्ट जो पब्लिश होती है वो मई जून में होती है, पब्लिश होती है रिजल्ट्स मई जून होगा, नवंबर में कैट का एग्जाम होता है, तो 5 to 6 मंथ का आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो इट इज नॉट काउंटेड फॉर योर्स। ठीक है, तो वैसे लोग जिनका 2 साल 3 साल का गैप है, 2 इयर्स 3 इयर्स का गैप है, उन लोग उनके साथ एक्सपीरियंस देना होगा, उनका भी एडिशनल वेटेज देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दो सम ऑफ द स्टूडेंट्स who had done the graduation and working different company for 2 years 3 years, और उसके बाद वो क्या करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए कहा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे या अभी ग्रेजुएशन किए उनके लिए दे नो नीड्स, अगर वो डिस्टेंस लर्निंग से किए होंगे तो उनके लिए जरूरत पड़ सकता है, बट जो रेगुलर क्लासेस किए उनके लिए दे नो नीड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो दिया हुआ है क्या क्या देता है, प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस ये देखा जा सकता है, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड जेंडर। मैंने बताया था कुछ आईएम्स जो होती है वो फीमेल्स को वेटेज देती है, कुछ आईएम जो है वो फीमेल को वेटेज देती है, दो जेंडर हो गया, फीमेल होंगे तो एडिशनल हो सकता है वहां पे, बट नॉट ईच एंड एवरी आईएम्स। ध्यान दीजिए मेरी बात, कुछ आईएम्स है जो देती है। एकेडमिक डाइवर्सिटी समझ में, एकेडमिक डाइवर्सिटी में समझ में मतलब अलग अलग, एक पढ़ाई के साथ अलग अलग है, कुछ अलग अलग चीज किए हुए एकेडमिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना आपके पास। एंड अदर सिमिलर इनपुट्स इन शॉर्टलिस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। समझ में आ गया। तो क्या क्या जरूरत है, वन इज योर कैट स्कोर, जो मेन पॉइंट है ये बताएं कि ये स्कोर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद वैट, उसके बाद थर्ड जीडीएन पीआई, इसके बाद एडिशनली क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है नहीं, एडिशनली क्या क्या होगा भाई। तो आप मुझे कहेंगे एक एकेडमिक्स ये हो सकता है, अगर आपके पास है तो हो सकता है कुछ आईएम्स इसका वेटेज दे एकेडमिक। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ गैप ग्रेजुएशन आपने मैंने बता दिया है कि आप 2 इयर्स 3 इयर्स पहले कोई बीटेक किया हुआ है या बीबीए किया हुआ, तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, या और एकेडमिक अलग अलग ग्रेजुएशन किए हुए तो सब्जेक्ट में किए हुए तो। इसका जेंडर का भी वेटेज कुछ लोग देते हैं, तो ये मेन क्राइटेरिया आपका होगा। इसमें मेन क्राइटेरिया में ये पॉइंट्स हुआ, इसके बाद एडिशनल ये आपके पास होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। So at present you have to focus on the how to get the 100 percentile in CAT 2024 एग्जाम। अभी आपको फोकस करना है कि कैसे हम 90, 95, 100 परसेंटाइल कैट में लाए। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर गेटिंग 100 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम्स। देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। ओके, वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन 30 to 35%, आई एम टेलिंग अबाउट द एक्यूरेसी, सही की बात कर रहे हैं, अगर 30-35% आपके सही होते, यू कैन गेट द परसेंटाइल 87, 88, 89, 92, 93, 94. If you are doing the score of more than 40%, so then you can get the 99, 100 percentile. Okay, next. I am giving the additional information for you. अब नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन में क्या क्या जो जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उसका वेरीफाई किया जाएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास भेजा जाएगा, उनसे वेरीफाई करेगा। वो नेक्स्ट पॉइंट है जो आप जानते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो वो फेक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, वैसे बच्चे देते भी नहीं है। उनका वेरीफाई वो कहाँ से करेंगे, उनके यूनिवर्सिटी से, या कास्ट सर्टिफिकेट देंगे तो वो भी वेरीफाइड करेगा। आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन। आईएमएस के तो फ्रीडम भी है उन लोगों को, उनके पास ऑलरेडी लिंक होता है, वो वहां से वेरीफाइड कर लेते हैं। ओके, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट, तो समझ चुके हैं आप क्या क्या प्रोसेस है सिलेक्शंस का। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया, परसेंटाइल के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव टू कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हियर इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादा अच्छा होगा। Candidates applying for CAT 2024 should fulfill any of one of the following conditions: completed bachelor degree with the required percentage of mass। समझ में मतलब जो परसेंटेज ऑफ मास चाहिए वो आपको क्या करना होगा, बैचलर डिग्री उसके साथ हो, या प्रोफेशनल डिग्रीज हो, जैसे आप जानते हैं सीए सीएस इन सब साथ साथ बीटेक, ये भी आपके बीटेक को ऐसे ग्रेजुएशन में माना जाता है। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हुआ, should be in the final year of bachelor degree with required percentage
समझाना है मतलब। तो फाइनल ईयर का भी आपके पास, अगर at present you are studying the final year, you can fill up the forms of the CAT if your result will be published in 2025. 2025 में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अपियरिंग कैंडिडेट। तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कैट को। तो ये कह रहे हैं कि आप स्थिति में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो अभी रिक्वायर्ड परसेंटाइल है उसके अनुसार। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यू कैन टेल इन सेम सेमेस्टर में आप बोलोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इनकी परसेंटाइल होगा, उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। In the given additional information, what the given information? SC, ST, PW candidates should have minimum 45%. उनको कितना परसेंट चाहिए? 45%. For general EWS, OBC इनको जो चाहिए 50% मार्क्स चाहिए for fill of the form of the CAT. फॉर्म भरने के लिए ये क्राइटेरिया है। SC, ST को 45% चाहिए और अदर जो आपके पास अदर जो कैटेगरीज के हैं जनरल EWS इन लोगों को चाहिए 50%। देखिए क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एज फॉलोड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। समझाना मतलब अलग अलग, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, मान लो बिहार में जो यूनिवर्सिटी चलती है ऑनर्स देती है, तो ऑनर्स पे कैलकुलेट होगा परसेंटेज मार्क्स। कहीं पे पास कोर्स चलती है तो पास कोर्स के अनुसार परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट होगा, बी रिमेंबर, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी का जो ओन क्राइटेरिया है, जो यूनिवर्सिटी का कि कैसे वो स्कोर कैलकुलेट करती है आपका फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास या 60% मार्क्स, 70 मार्क्स, जो मार्क्स कैलकुलेट करती है, जिस बेस पे कैलकुलेट करती है उसी तरह से आपको क्या होगा वहां पे कैलकुलेट होगा। ओके, नेक्स्ट समझ चुके हैं आप एडिशन, ये सब इंफॉर्मेशन है। यहां लिखा आई एम मे वेरीफाई एलिजिबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है मतलब। तो वेरीफाई करेगा, जो डॉक्यूमेंट देंगे, मैं बार बार कर रहा हूं, वो फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट वर्ड कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट। समझ गए, मेन आपको जानना था कि कितना परसेंट मार्क्स चाहिए और कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते थे। मैंने क्या बोला, एनीवन हु इज स्टडीइंग द फाइनल ईयर वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बार फाइनल जिनका 2025 में फाइनल होगा वो भी फिलअप कर सकते हैं। जो पास आउट कर चुके हैं वो भी फिलअप कर सकते हैं। वो 2024 में पास आउट किया उससे पहले पास आउट हो वो भी फिलअप कर सकते हैं। दे नो एज क्राइटेरिया, इसलिए किसी भी एज के लोग क्या कर सकते हैं, कैट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, देखिए रिजर्वेशन में लिखा हुआ है एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। रिजर्वेशन क्या है, 50% ऑफ द स्टेट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 27% अदर बैकवर्ड क्लास जिसे ओबीसी कहते हैं आप, और आपके पास अप टू 10% ऑफ सीट रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, आप जानते हो इनके लिए है, ये आपके पास दे दिया। और बाकी क्या हुआ, अनरिजर्व सीट्स हो गया। आगे बढ़े, क्लियर? तो समझ गए क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। एक ही चीज मैंने डिस्कस किया। इसके बाद आईएम्स का है, ये सब आपके पास एडिशनली है, ये सब आपके पास है। जो ये अलग अलग लोगों का जो ब्लाइंडनेस है, डीफ है, उन लोगों के लिए है। तो जनरली इस टाइप के लोग तो कम होते हैं, लेकिन याद रखिए एक बच्चे को मैंने देखा था, ही हैड पास आउट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, और वो था जो पर्सन था वो डीप था, डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, और ही हैड टेकन एडमिशन इन IIM अहमदाबाद, ही हैड पास आउट फ्रॉम देयर्स। और उन्हें एक बड़ी डिजीज अभी हाल ही में मैंने न्यूज पढ़ा था, परहैप्स ही वाज पास आउट ऑफ द लास्ट ईयर। ओके, चलिए नाउ वी हैव टू कम ऑन दिस पॉइंट्स। डॉक्यूमेंट तो आप समझ गए, एक डॉक्यूमेंट तो आपने देख लिया कि आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो आपके एकेडमिक जो है उनका डॉक्यूमेंट साथ साथ होना चाहिए। अगर अपीयरिंग फाइनल ईयर में है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वेटिंग होगा तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और पास आउट हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। नाउ वी हैव टू कम ऑन दिस पॉइंट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर SC ST OBC जो है, NC जो आपके पास EWS एंड सो ऑन PWD। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC और ST कैटेगरी, their respective caste type must be listed
इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल, जो भी आपके पास कैटेगरी है उसमें आपके सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे, बस इतना ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिसको जिस ग्रुप में रखती है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। द कास्ट सर्टिफिकेट दैट द कैंडिडेट सबमिट टू आईएम्स should be in the government of India approved format and should clearly स्टेट, मतलब स्टेट से भी होगा तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर्मेट है उसमें आपको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ब्लॉक से बनती है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है वहां से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। एंड सो ऑन। आइए नेक्स्ट, ए कॉपी ऑफ द SC ST NC OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ कैट एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, मतलब कैट एप्लीकेशन से पहले आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट पहले बना के रख लेना है। ध्यान देंगे फॉर्म फिलअप से पहले जनरली जो इनकी डॉक्यूमेंट नहीं लिख, जनरली आपके पास जानते हैं EWS का OBC का जो क्रिमिनल ईयर में आते हैं, इनके लिए क्या होता है 1 ईयर का वैलिडिटी होती है डॉक्यूमेंट्स का। तो अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट्स हो तो आप प्लीज उसको नहीं अपलोड करें, एक नया डॉक्यूमेंट्स बना लें, ठीक है, EWS का OBC का, और उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये दे दिया कि एट द टाइम ऑफ कैट का जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसी समय अपलोड करना होगा आपको। फेलोड, देखिए फेलोड टू अपलोड अ कॉपी ऑफ द कास्ट क्लास सर्टिफिकेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैट रजिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपने लिख दिया कि मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूं, ठीक है, उनका बेनिफिट जनरल नहीं डाला, शेड्यूल कास्ट डाला और उसके सर्टिफिकेट नहीं डाले, ठीक है, उस चीज में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, मतलब आपने EWS डाला, EWS के सर्टिफिकेट नहीं डाला, ठीक है, और अपलोड नहीं हो पाया, तो उस चीज में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, रिजेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट्स कैट रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका आप जैसे आप करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब अभी एट प्रेजेंट में नहीं, कुछ दिन के बाद आपका मालूम हुआ आपको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने इस डॉक्यूमेंट को जमा नहीं किया है, ठीक है। सो प्लीज आप सभी लोग पहले इस सभी सर्टिफिकेट को बना लें, ठीक है। मैंने कहा 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे 1 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस नहीं हो तो आप बनवा लीजिए, टाइम इट इज द टाइम ऑफ टिल 13 सितंबर, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपको समझे। नाउ वी हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द गिवन द कंप्लीटेड। सो आपको मैंने बता दिया कि सर्टिफिकेट्स में क्या क्या जरूरत है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो लगाना है आपका जो रिजर्व कैटेगरी का, उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे और कितने दिन पुराना होना चाहिए, ये आपको बता दिए। नाउ वी हैव टू कम ऑन नेक्स्ट to have discussed about CAT 2024 advertisement, how to calculate percentile, selection process IIMs, CAT 2024 eligibility criteria, और ये ऑलरेडी ये सब आपके पास ये पॉइंट जो है ये आपके पास 21 IIMs हैं, तो इनका ये लिंक दिया हुआ है कि कौन कौन से IIMs हैं, इसके कवर हैं। 21 IIMs के लिए लेती है, इसके अलावा नॉन IIMs भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं। जस्ट गिव मी द एग्जांपल, MTI गुड़गांव, नाम सुने होंगे आप लोग, IMT गाजियाबाद, SP जैन कॉलेज एंड सो ऑन, लाल बहादुर शास्त्री इन दिल्ली। तो ये सब अलग अलग है कॉलेज, फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी कॉलेजेज हैं जहां पे आप ऑन द बेस्ड ऑन द कैट स्कोर यू कैन टेक एडमिशन। इंडिया टॉप कॉलेजेस दैट इज कॉल्ड नॉन IIMs, ओके। तो समझ गए, इस तरह से आपको ये अलग अलग है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जनरली ये उनके लिए जो PhD करना चाहते हैं, तो कैट का एग्जाम PhD करने के लिए भी होती है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये आपका मतलब है, मैं PGP प्रोग्राम, PGDM प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, तो ये आपके पास है। मुझे लगता है एक ही चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट्स हम लोग आ जाते हैं। प्रोफेसर इज ऑल्सो गिविंग द 20K off for those types who is taking the CAT courses, okay, till 15 August 2024. Here is the providing offline and online classes. For tracking the CAT exams, you have to know 40% of syllabus. Here provide all of the things related to materials, online tests and so on. So interested candidates who can call or communicate to Professor Academy for these courses. You have to do level hearts only. I can do all of the works behalf of yours. So anyone who is interested
Please communicate to Professional Academy. It is the mobile number 930481512. Second number 983563844. Okay. Thank you to all of you.